ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کے خدمت کرے 5 سال، اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیٹ سیٹ ہو جائے گی. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، شہباز شریف نے آج تہلکہ خیز بیان دیا جہاں بات ہو رہی تھی کہ کچھ ہی ہفتوں یا مہینوں کے لیے عبوری حکومت بنائی جائے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو. لیکن نون لیگ کے صدر نے 5 سال کے لیے قومی حکومت کے قیام کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے. اور آج سابق صدر آصف علی زرداری نے ادھر اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے رہائش گاہ پہ انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی ہے اور ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے بعض مطالبات ماننے کی صورت میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. اب کیا تمام جماعتیں مائنس تحریک انصاف قومی حکومت کی تیاری کا سوچ بھی رہی ہیں؟ اور کل ایک انٹرویو میں آپ نے سنا ہوگا کہ کاف لیگ کے رہنما پرویز الہی نے کیا کہا، یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس نے بگاڑ کی ہے، ہر ایک سے بگاڑ کی ہے، حتیٰ کہ اپنے لوگوں سے بگاڑ کی ہے. ان کے اپنے لوگ ہی ہیں نا جس وجہ سے یہ گھبراہ کر رہے ہیں. تو صرف زبان ہے نا، زبان جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جوڑ بھی دیتی ہے تو ہمیشہ کے لیے توڑ بھی دیتی ہے. حد نہیں ہوتی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی. خان صاحب نے سب سے یاد کیا ہے نا. تحریک انصاف آج کل سختے میں ہے. آپ کو کیا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کی جماعت کو آفر کی گئی ہے کہ ہم نظام ہو جائے؟ یعنی وہ اکیلے انہوں نے خان صاحب نے کہا مانس کو 4 دن پہلے کہ آپ ضم ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، مسلم لیگ ضم نہیں ہوتی، ہمارا مسلم لیگی ووٹ ہے، ہم کو اپنا ووٹ تباہ کریں. ناظرین، اسی انٹرویو کے اندر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ان کے معاملات حکمراں جماعت کے ساتھ اچھے نہیں بلکہ بہت برے ہیں. پر آج پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم اچھے انسان ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، ہم نے نہ حکومت چھوڑی ہے اور نہ ہی اپوزیشن جوائن کی ہے. تو کیا اتحادی مل کر اپوزیشن کے ساتھ اگلے سیٹ اپ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا ابھی تک کال کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد حسین مقصی صاحب. خالد صاحب، پہلے اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ساتھ یہ پیشکش کی تھی کہ جی آپ ہماری پارٹی کے اندر ضم ہو جائیں پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں، میرے ساتھ تو کبھی ایسی بات نہیں کی. اچھا، چونکہ پرویز الہی صاحب نے آپ نے سنا ہوگا کل اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ باپ کو بھی کہا گیا تھا. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کہا تھا. دوسری طرف پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جو بھی اتحادی ہیں ایم کیو ایم، باپ اور ہم. 1 منٹ پہلی بات کریے، باتیں بیچ میں چلی تھی کوئٹہ میں بلوچستان میں، ڈائریکٹلی مجھے نہیں کہا تھا، ہوا میں ذرا باتیں نکلی تھی کہیں، یہاں تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے ابھی. اچھا، کس نے یہ بات کی تھی؟ یہ مطلب فرام دا ہارسز ماؤتھ جیسے ہوتا ہے نا ایک قسم کا، یہ ساتھیوں میں، بٹ نو بڈی فوکسڈ آن اٹ اور نو بڈی، اس کو توجہ کسی نے نہیں دی اس بات پر. اچھا، اور وہ کس صورت میں کہا گیا تھا، کہ کیا پس منظر کیا تھا اس کا؟ باتیں چلتی رہتی تھی، پھر ہم نے اس کو بھلا ہی دیا، توجہ بھی نہیں دیا، وہ بات تو گزر گئی، بٹ اس قسم کی بات کچھ نکلی تھی تو اس لیے میں نے کہا ذرا وہ بات کو میں کلیئر کر دوں نا. ہاں، پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی جتنی بھی جماعتیں ہیں اتحادی وہ مشترکہ فیصلہ کریں گی. تو آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مشترکہ کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ سیاسی سلسلہ ہوتا ہے، سب کی جماعتیں اپنی ہیں، سب کی اپنی پہچان ہے، مگر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی ایک اور جماعت ہے، ایم کیو ایم اور ہے، کٹے گورنمنٹ کر رہے ہیں نا، ضرور مذاکرات بھی کرتے ہوں گے. اب نہیں بن رہی تو ہم بھی ایسے جب آ گئے ہیں تو اپنا دیکھیں گے. نمبر گیم ہے، ہر کوئی اپنا جگہ چاہتا ہے، سیاسی بصیرت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، سیاسی زندہ رہنا چاہتا ہے، تو ہم دیکھیں گے. ملاقاتیں بھی ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، پہچان سب کی اپنی ہے. نہیں، چونکہ زبیدہ جلال صاحبہ نے یہ کہا کہ جی ہم مشترکہ فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپنا انفرادی فیصلہ کریں گے. نہیں، انفرادی فیصلہ ایسے ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے اپنے اندر انفرادی فیصلہ کریں گے. جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ظاہر ایک مشترکہ بات آئے گی نا، مطلب سب کی پہچان ہوگی. اب جو پروسیس چل رہا ہے تو ہم اپنے فیصلے خود سوچ کے کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم اپنا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے اوپر دوسرا کوئی اپنے فیصلے مسلط نہیں کرے گا. جی. آپ کی جو اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر کیا باتیں طے پائی ہیں اور آپ کے کیا ڈیمانڈز تھے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ابھی تک ہم اپنے بلوچستان کے مفاد کو دیکھ رہے ہیں، مین فوکس ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست آئے. ہمارا فوکس اس پہ تھا کہ یہ جو چلتا ہے 70 سال سے یہ چیزیں نہیں چلیں، یہ عادتیں چھوڑ دیں. آج بھی میری ملاقات ہوئی کاف والوں سے، میں نے کہا جی اپنا آپ کے نون والوں سے کچھ ساتھی آئے تھے
तो मैंने कहा जी पुराने सिस्टम, पुराने रवैये, पुराने ये तरीके कार पे तो हम उससे बेजार आ गए हैं। अब देखते हैं नई चीजें, हम भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम भी इस वक्त एक सोचने के प्रोसेस में है, बड़ी गहरी सोच में, मुस्तकिल 4-4 घंटे बैठ के हम आपस में पार्टी वाले जो डिस्कस करते हैं, हर पहलू को देखते हैं, मुलाकातें भी। वी आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। आप समझ रहे हैं ना जी? जी मैं समझ रही हूँ। बिलावल अफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हम छोड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, मगर हम तहरीके अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, तहरीक अदम जब वहां की आएगी ना, यहाँ पे तो अभी यहाँ का तो हमारा अपना फैसला है, जो हम करेंगे फैसला, उसका पार्लिमानी लीडर मैं हूँ। इस प्रोसेस में भी मुझे उन्होंने आगे किया हुआ है। सो आई एम डिस्कसिंग, हम फैसला करके हम 5 MNAs जो है, 5 MNAs हम खुद अभी उतना मामला देख रहे हैं। खालिद साहब, आपके मेन स्टिकिंग पॉइंट्स हुकूमत के साथ हैं क्या? मेन स्टिकिंग पॉइंट्स मायने के मसले? मेन स्टिकिंग पॉइंट्स ही देखिए, मसले स्टिकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं कि 3.5 साल में हम कहते रहे, देखते रहे, और उस वक्त हमारी इतनी ताकत नहीं थी, हैसियत नहीं थी। अब वो मेरे से पहले भी किसी ने सवाल किया कि जी 3.5 साल ठीक थे, अब आपको क्या हो गया? तो मैंने कहा जी हर कोई मौका ढूंढता है, ठीक है ना, ये नेचुरल फिनोमेना है। 3.5 साल अगर आप वीक हैं और नहीं कर सकते तो मौका आता है, तो देन यू शो योर थिंग्स विच यू हैव इन योर हार्ट। आप अपने फिर दिल के वो जो अंदर बात बन जाती है, मौका देखकर जब आप समझते हैं कि आपकी बात की अहमियत सुनी जाएगी। अब सुन रहे हैं ना, जो सुनते नहीं थे अब देखिए सुन रहे हैं ना, मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई मक्सी साहब, हुकूमत की तरफ से देर नहीं हुई। हुकूमत की तरफ से देर किस माने में कि मतलब उन्होंने मायने कि अभी भी दरवाजा खुला हुआ है और आप वहाँ पे कोई ना कोई अपने मामलात हल कर सकते हैं हुकूमत के साथ। आप बहन चाहती हैं कि मैं करूं? नहीं, ये आपके ऊपर है ना, आपकी पार्टी के ऊपर है, आप मुशावरत कर रहे हैं। हम तो अपना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मक्सी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, नून लीग के मियां जावेद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कौमी असेंबली की कमेटी ब्राय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जावेद साहब, बात यह है कि आज परवेज लाई साहब ने एक बयान दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जरा सुनाइएगा जी वो बयान, जहां उन्होंने कहा है कि जी 10 से 12 जो अरकान हैं, MNAs हैं, वो अपोजिशन के पास है। जो साहब ये काफ लीग के अलावा जो बाकी 2 इत्तेहादी हैं, जी वो माशाल्लाह ज्यादा वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। ये भी आपको बता दें। अच्छा, सेफ कस्टडी गवर्नमेंट की नहीं या अपोजिशन की? कस्टडी अब और है। अच्छा, अब और है, यानी जी ये आपने कोई नहीं सर, मैं कोई गलत फहमी न कर लें। हाँ। देखें, 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे। अब हम उनको भी जरा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। अच्छा, PTI के 10 से 12 बंदे आपको मिले थे जो आपकी सोच से मुतासिर थे, आप अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहे और किसी सेफ कस्टडी में है। वो सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। अपोजिशन की। क्यों जी, किसको आपने सेफ कस्टडी में रखा हुआ है? 10 से 12 लोग? देखें, 10-12 तो नहीं है, इससे ज्यादा है? और ये सारे के सारे PTI से इनका तल्लक है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि कम से कम 3 दर्जन के करीब ये लोग हैं। सेफ कस्टडी में रखना तो इलीगल होता है। सेफ कस्टडी, अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप मिलना नहीं चाह रहे किसी को, तो उसको कोई सेफ कस्टडी में कहता है तो वो उसका कहना है। मगर अगर आप ये अहद करके बैठे हो कि मैंने किसी तौर पर भी अपनी जमात के लोगों को नहीं मिलना या किसी और को भी नहीं मिलना, उस वक्त तक जब तक अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं होती और वोटिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, तो जो भी इसको तो ये सारे लोग अपने घर बैठे हुए या आपने कोई घर दिया है उनको? हर बंदा अपनी मर्जी से बैठा है। अपने घर में? अपने घर में बैठा है, किसी के घर में बैठा है, अपनी मर्जी से है। अच्छा, अपनी मर्जी से बैठा है और हमारे राब्ते में है। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि 5 साल की जो है यूनिटी गवर्नमेंट हो। ठीक है जी, उन्होंने ये बात कही है और सब हम मिल बैठ के जो है हुकूमत चलाएं। यहाँ पे तो जी शाहिद खान अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सारे बात कर रहे थे हफ्तों की,
चंद महीनों की, और उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस के हवाले से कानून है उसके अंदर हम तरमीम करके बात आगे बढ़ाएंगे, जल्द से जल्द इलेक्शन कराएंगे, तो आप कहाँ 5 साल की बात कर रहे हैं? मनीष, जो मैंने सुना है उसको जो मैं समझाऊं तो वो जो मौजूदा बगाड़ है 4 साल का, उसका वो समझते हैं कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए तो इन चैलेंजेस का मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और मैं जो समझा हूं वो ये है कि नए इंतखाबात, ये नहीं है कि ये कोई आप नेशनल गवर्नमेंट बना लें बगैर इंतखाबात के और वो 5 साल रहे, ये गैर आईनी है। इंतखाबात तो आप एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है ना, तो इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। जाहिर है अगर अवाम वोट देगी तो आप सारे वापस ईवानों के अंदर आएंगे, मगर जो वो यूनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि जी 5 साल हम फिर इकट्ठे मिलके करेंगे और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझा और ना मैं इस चीज का हामी हूं। मैं ये समझता हूं कि देखिए, इंतखाबात के बगैर, अवामी हमायत के बगैर, आजादाना इंतखाबात के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकें। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस भंवर से निकाल सकते तो अदम एतमाद करके हम साल सवा साल की हुकूमत करने का अंदिया देते। हमारी लीडरशिप ये कहती शहबाज शरीफ साहब का क्या मतलब है इस तरह कहना कि जी 5 साल मैं चाहता हूं कि सब इकट्ठे काम करें? वो बाइट भी अगर आपके पास है प्लीज वो चला दें, इसलिए चूंकि वो क्लियर हो जाए कि वो है क्या। 1 मिनट वो सुन लेते हैं सर, प्लीज दिखाएं। हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। मैं जो इसमें भी समझ रहा हूं, आप मुझे ये बताएं कि नेशनल गवर्नमेंट आप पीटीआई के बगैर कैसे बना सकते हैं? इंतखाबात के बगैर तो मुमकिन नहीं है। आप मुख्तलिफ जमातों को, जो सियासी जमातें हैं, वो इलेक्शन जीत कर आएंगी, असेंबली का हिस्सा बनेगी तो आप उस पर नेशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसके बगैर कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद जो है नेशनल गवर्नमेंट का एक ऑप्शन। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। जी, ये है उनकी राय और ये मुमकिन भी है और ऐसा हो भी सकता है। उसकी वजह 2-3 है कि आप देखें कि कोई भी जमात जो है, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत की तबाही की गई, जिस तरह इन्होंने अदारों को कमजोर कर दिया, जिस तरह दुनिया के चैलेंजेस पाकिस्तान को उनका सामना है, ये मुमकिन नहीं है कि एक जमात जो है, हाँ हमारा दावा है और जो हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों से कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को लोग किस तरह याद कर रहे हैं। अच्छा। लोग समझते और हम समझते हैं, हमें यकीन है इस बात का कि अगर फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं तो हम 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करते हैं। मगर इसके ऊपर भी मैंने आपसे बड़े अहम सवाल करने हैं और वो ऐसे भी करने हैं कि पंजाब के अंदर आप पर चौधरी बरादरान के साथ कैसे चलेंगे, इसके ऊपर भी बात हो रही है। पेशकश की गई है मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब को कि वो चीफ मिनिस्टर बने। नाज़रीन, अहम सवालात करते हैं मगर वक्फा लेते हैं पहले छोटा सा। वेलकम बैक नाजरीन। ये अब जानना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर। मियां जावेद साहब, ये बताइए कि आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी ने ये पेशकश की परवेज इलाही साहब को कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं पंजाब के। देखें, जहां अदम एतमाद का तल्लक है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को ये कहें ना कि मिल के हुकूमत कर लेते हैं या इसको उतारने के लिए कोई इनिशिएटिव किसी को देते हैं या लेते हैं, ये मुमकिन होता नहीं है। तो फिर किया आपने, उनको पेशकश की? मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं उन्होंने की, आपने की। मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम की क़यादत है या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी अगर उनको ऑफर की गई है तो हम उसको ऑन करते हैं। उसकी वजह है कि जब हम इकट्ठे चल रहे हैं तो फिर कोई इत्तेहादी, अपोजिशन का इत्तेहादी अगर कोई बात करके आता है तो आप उसको डिसोन नहीं कर सकते। मगर वो तो आपने उसी पीरियड के लिए किया है ना कि जब आप कह रहे हैं कि आप लोग कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए आएंगे। ये बात ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की ये भी थिंकिंग थी जो हमारे तक सोर्सेज ने हमें बताया है, वो ये थी कि अगर परवेज इलाही साहब बन गए
वजीर आला पंजाब, तो वो आपकी पार्टी को तोड़ना शुरू कर देंगे? देखिए, एक मुखालिफ जमात से तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, ये एक हकीकत है, और उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पार्टी के लोगों ने किया, मगर एक बड़े मकसद के लिए आप ये देखें कि पीटीआई के लोग जिनको हम साथ शामिल कर रहे हैं, जिस तरह लोग कह रहे हैं ये हार्स ट्रेडिंग है, हमने कोशिश की कि गैर आईनी हुकूमत को भी आईनी तरीके से हटाया जाए। हमारी ये ख्वाहिश है और रही है इससे पहले भी कि गैर आईनी हुकूमत को भी जिस तरह बनाई गई है उसी तरह उसको हटाया ना जाए। जब आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपने किसी को पैसे ऑफर नहीं किए अपनी लॉयल्टीज बदलने के लिए? देखें, हॉर्स ट्रेडिंग उसको जरूर कहते हैं कि अगर आप किसी को पैसे ऑफर करते हैं, किसी को कोई और लालच देते हैं, मगर अगर कोई ये बात कहे किसी दूसरी जमात का मेंबर कि मैं आइंदा आपकी जमात को ज्वाइन करना चाहता हूं, आइंदा आपके टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आपके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग का मायने आप किस तरह दे सकते हैं? आपकी सारी जमात जो है वो मुख्तलिफ जमातों से आए हुए लोगों के साथ खड़ी है, तो क्या उसको आप हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे? हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप 20 करोड़ 18 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं वो साबित करें तो उसको आप हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं, मगर जमात से अपनी नजरियाती वाबस्तगी चेंज करने को आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कह सकते। अच्छा, आज परवेज इलाही साहब ने कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मामलात सिविल मिलिट्री के ठीक नहीं थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जी वजीर आजम इमरान खान ने देर की ISI के चीफ को अपॉइंट करते हुए। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत जरूरी समरी है जो 6 महीने से उनके पास पड़ी हुई है, उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे। तो अगर इस समरी पे साइन हो गया तो आपके तरीके अदम एतमाद का क्या होगा? देखें, जो आज या कल चौधरी साहब ने बातें की है ना जी, ये बातें हम 3.5 साल से कर रहे थे जी, मगर उसको वेटेज चौधरी साहब की गुफ्तगू को इसलिए मिली कि वो उनके इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी होने के नाते जो बातें वो कर रहे हैं तो लोग दुरुस्त कर रहे हैं, वो बातें उसको वजन दे रहे हैं लोग कि ये बातें दुरुस्त हैं। अच्छा, अब आ जाए जो बात आप कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप देखें कि हम बिल्कुल। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने भी MQM ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, सीनियर लीडर है, मगर अपनी बात मुकम्मल करें फिर उनकी जानिब जाते हैं। जी, आप पहले बात करें। जी ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी भी आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, आपकी कुछ मुलाकात होने लगी थी जरदारी साहब से भी। आपके किस हद तक मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा अगर अपोजिशन के साथ आपके मामला तय पाते हैं तो? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज तो ये देखना है कि हुकूमत कितनी मुस्तहकम पोजीशन में है, क्योंकि मसला विद इन PTI भी खड़ा हो गया है। और जिस तरह से आज सुबह से बयान चल रहे हैं कि मैंने जो है वो शायद नाराज है या वफादारियां चेंज कर रहे हैं, तो अभी तो सबसे बड़ा मसला खुद विद इन गवर्नमेंट उनके अपने इस्तेकाम का है। अब रहा सवाल हमारा, तो हम इत्तेहादी हैं, बिल्कुल हैं, और बड़ी संजीदगी और सिंसियरिटी के साथ PTI के हर क्राइसिस में हम साथ देते रहे। लेकिन अगर कहीं खुद ही सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इंतशार या तसादम की तरफ जा रहे हैं, तो फिर MQM उसमें ज़ाहिर अपने लोगों के मफादात जमहूरियत के तसलसल के लिए फिर अपने कार्ड्स वो भी शो करेगी। लेकिन हाँ, मुज़ाकरात हमने सबसे की हैं, क्योंकि किसी भी मुतबक्का सूरत हाल में MQM एक इंतहाई अहम जुज़ है। गो के हमें 24 से समेट कर 7 पे कर दिया, लेकिन शायद वजन के एतबार से ये 7 काफी मायने रखते हैं। नहीं, मगर ख्वाजा साहब ये बताइए कि ये कुछ था कि आप जो है गवर्नरशिप चाहते हैं सिंध की, फिर उसके अंदर 6 वजारतें चाहते हैं, लोकल बॉडीज के ऊपर आप जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, जो फंड्स आपको नहीं मिलते उस हवाले से आपने कहा है कि उसके ऊपर बातचीत हो, तो फिर कहाँ तक जरदारी साहब माने हैं आपकी बातें? लेकिन पहले 2 मुतालबात तो बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है, गवर्नरशिप और वजारतों की। अच्छा, ना वजारत की बात हुई है ना गवर्नरशिप की बात हुई है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, हमने तो इससे कहीं ज्यादा बड़े मुतालबात रखे। ये तो अलामती है कैबिनेट में बैठना। हम
हमने तो तमाम वो मुतालबात जो पीटीआई के साथ रखे थे 2018 में, वही हमने जरदारी साहब के आगे रखे। सिर्फ उसमें एक इजाफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा फैसला है जी 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 उसको जितनी जल्दी कानून साजी कर ली जाए तो हमारे दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है और एक फासला है और हमारे दरमियान जो एक जी बेयकीनी है वो उसमें मदद मिलेगी। सॉरी, वक्त की किल्लत है इजहार साहब, ये बताइए कि वजीर आजम के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? जी उनके साथ भी अच्छी मुलाकात रही, वो काफी पुरएतमाद हैं। तो आपने फैसला नहीं किया अभी तक? हम सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया ना, पूरी अपोजिशन को हमने एमक्यूएम की नहीं, कराची की अहमियत कम से कम हमें खुशी इस बात की कि इस अहमियत का सबने एहसास किया है। अगर कहीं से कोई एक मुस्बत यकीन दहानी होती है और कोई एक स्टेप लिया जाता है तो फिर एमक्यूएम बिल्कुल खुल के सामने आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दे आर अनडिसाइडेड, उन्होंने भी अभी तक फैसला नहीं किया। तो फिर ये बताइए कि अगर वो कहते हैं कि वजीर आजम मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, अगर वो खेल दिया गया तो फिर? देखिए मुनीज़े, अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से पहले अपना होमवर्क हम मुकम्मल कर चुके हैं और इत्तेहादियों के बगैर कर चुके हैं। नंबर हमारे पास 200 से जायद हैं इत्तेहादियों के बगैर। मगर जो इत्तेहादियों के बगैर आपके पास लोग हैं वो नजरियाती तो नहीं है ना? अच्छा, उनको कॉल्स नहीं जाएंगी? फिर मुझे ये बताएं कि जो फैसला लोग कर रहे हैं, अभी आपने एक वजीर की बात की, कुछ और वज़रा भी इस तरह की बातें करते हैं जी। मैं आपको एक कोट करने लगा हूं ऐसे वजीर की बात जिसने कहा कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद आते वक्त अपने बच्चों को ये कह के आया हूं कि जो एसेट है उसको बेच दें, अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। ये किसी वजीर, पीटीआई के वजीर ने पीटीआई के, जाहिर है पीटीआई का ही वजीर है, कोई और तो मेरे पीटीआई का ही वजीर नहीं, साबका वजीर दाखिला भी है, आज भी वजीर है वो। अच्छा वो समझ गए किसकी बात कर रहे हैं। 3 लोग थे, वो 3 वजीर थे वो बैठे हुए, और उन्होंने मुझे आवाज ब्रिगेडियर एजाज शाह की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूं। और जब आपके वजीर ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं कि हालात इस नहज तक आ गए हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि अरकाने असेंबली जो हैं वो हुब्बुल वतनी में, एक है नजरिया जरूरत, जी जी, एक होता है कि जमीर जाग उठा। इससे बड़ी बात वो कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, आइंदा नस्लों के लिए हम ये कुर्बानी सीट की दे रहे हैं। उनको इल्म है कि डी सीट हो जाएंगे, मगर वो ये बड़ा फैसला इसलिए कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात हों या ना हो, उन्होंने अपने हलकों में जाना है, वो इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, मगर लोगों को पीपल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मियां जवेद साहब ये कह रहे थे और कोट कर रहे थे ब्रिगेडियर एजाज शाह को, जो नारकोटिक्स के इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, और कह रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा है कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है, जो भी अपने सासे हैं उसको बेच डालो। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाजरीन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और जो मिसाइल यहाँ पे आके मियां चन्नू में गिरा है, इसके हवाले से बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मार्च को हिंदुस्तान की तरफ से मिसाइल फायर किया गया। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ का कहना है कि एक सुपरसोनिक मिसाइल 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए 250 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पंजाब के एक छोटे से शहर मियां चन्नू में गिरा, और मियां चन्नू बैनुल अक़वामी सरहद से 124 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इंडिया के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो वाक़या है ये एक हादसा था। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है।
पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वजाहत को मुस्तरद कर दिया और वाशिंगटन के मुबम बयान पर भी सवालात खड़े कर दिए और कहा कि इस मामले को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान फौज की तरफ से भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कल इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि इससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुंच सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो हिंदुस्तान के वजीर दफा ने लोकसभा में जवाब दिया है वो नामुकम्मल है, नाकाफी है, उससे पाकिस्तान मुतमईन नहीं हो सकता। उसको मैं मुस्तरद करता हूँ और मुतालबा करता हूँ ऑफ अ जॉइंट प्रोब। उन्हें एहसास है कि दिस मिसाइल could have led to an accidental war between two atomic states. This was a highly irresponsible act, and the answer given is equally responsible. पाकिस्तान के वजीर खारजा इस हवाले से अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल की सदर को भी खत लिख चुके हैं। पीर को अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान और इंडिया पर जोर दिया है कि दोनों मुमालिक बातचीत का आगाज करें। जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकार से सवाल पूछा गया कि अमेरिका जोर दे कि दोनों मुमालिक के दरमियान बातचीत का आगाज हो, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मिसाइल और दूसरे मामलात पर दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी बातचीत शुरू होनी चाहिए। चीन की वजारत खारजा ने भी दोनों हमसाये मुमालिक के दरमियान जल्द अज जल्द बातचीत का जोर दिया है और चीन ने पाकिस्तान के मौकफ की हमायत की और कहा है कि मिसाइल मामले की मुश्तरका तहकीकात होनी चाहिए। इस हादसे से नाज़रीन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती थी, पर दोनों तरफ से अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया और ऐसा नहीं हुआ। क्या इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2020 से बैक चैनल मुज़ाकरात तेज हुए हैं? क्या बैक चैनल मुज़ाकरात रंग ला रहे हैं और क्या अब इंडिया और पाकिस्तान बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है शाहिद मलिक साहब को, जो साबिक सफारतकार हैं। 2006 से 2012 तक भारत में बतौर सफीर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। फिर हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी हुई हैं दिल्ली से सुहासनी हैदर साहिबा, जो सहाफी हैं और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर गहरी नजर रखती रही हैं, और दफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमजद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या वजह हुई कि पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल है इसको गिराया नहीं? चूंकि पाकिस्तान की सेटल टेरिटरी मियां चन्नू पंजाब के अंदर आके ये गिरा। देखिए, ये तो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना काम हुआ कि दूसरी तरफ से मिसाइल आया, फिर आप एक और गैर जिम्मेदाराना काम करें कि उसको दागने के लिए या उसको गिराने के लिए भी आप फायर करें, क्योंकि उस वक्त कम से कम 4 फ्लाइट्स कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो उस वक्त हवा में थी। फिर ये भी आप देखिए कि अगर मिसाइल जाके किसी और जगह गिरते हैं, क्योंकि वॉरहेड हमारे तो मिसाइल पे लगा होता, अगर हम मारते तो नेचुरली उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता था जी। और फिर ये कि ये चीजें जो हैं, जब एक दफा एक्सचेंज ऑफ वेपन्स हो जाता, एक्सचेंज ऑफ मिसाइल हो जाता, तो फिर तो एक जंग शुरू हो जाती। सो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सी हरकत हुई है, जिसमें कि नीयत क्या है, आप कहते हैं कि जी हम तो एक्सीडेंटली ये हुआ, लेकिन ये साबित करने के लिए तो इंक्वायरी ही की जरूरत है जिससे अंदाजा हो सके। और जनरल साहब, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था? ये दुरुस्त है, जब आपके रेडार पिक करते हैं ना जी, तो उस वक्त ये सारा सिस्टम जो है आगे वो रेडार के साथ कनेक्टेड है, और सिर्फ आपने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, रेडार ने यानी खुद इंस्ट्रक्शन जो देनी है वो आप उसको मैनुअली दे रहे हैं, और नतीजा ये कि वो मिसाइल निकल जाएंगे आपके डिफेंस सिस्टम से उसके खिलाफ। अगर जंग का माहौल हो जाए और आपको अंदाजा हो कि अब जंग हो सकती है जी, तो फिर ये सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम पे चला जाता है। फिर वो रेडार खुद ब खुद ऑर्डर दे देता है कि ये थोड़ा सा फर्क है इसमें कि पीस टाइम में आप रेडार्स को ऑर्डर डायरेक्ट नहीं देने देते, और जब ये जंग का माहौल हो तो फिर रेडार ऑटोमेटिक में वो उनकी तरफ से नेचुरल जैसे ही वो स्पॉट करेंगे किसी चीज को वो ऑर्डर चला जाएगा और वो फायर करेंगे। ठीक है शाहिद मलिक साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी, तो एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने। हिंदुस्तान के ऊपर क्या सवाल है वो हम सुहासनी से पूछेंगे, मगर क्या आप समझते हैं कि बैक चैनल्स रंग ला रहे हैं? शायद इसी वजह से रिस्ट्रेन जो है दोनों तरफ से देखा गया, खास तौर पे पाकिस्तान की। देखिए, बैक चैनल बिल्कुल, एक तो हमने मेरे ख्याल में बहुत
ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور اس دفعہ ہی نہیں کیا، ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سب مرین کا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا، بالکل اس میں بھی ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا. آپ کو منیزہ ضرور آپ کو یاد ہوگی وہ جو ہوئی تھی حرکت. جی تو ہم نے بڑا ایک میچورٹی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہماری کسی قسم کی کمزوری ہے. اس میں ریسٹرینٹ کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ یہ بیک چینل کی جو ہوئی ہے، مجھے بیک چینل کے بارے میں اتنی کوئی اطلاع نہیں ہے. خبریں میں نے پڑھی ہیں، خبریں میں نے سنی ہیں کہ بیک چینل چل رہی ہے آپس میں. جہاں تک بیک چینل کا سوال ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں جی دونوں ڈی جی ایم اوز نے ایک ایگریمنٹ جو ہے، ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی ایل او سی کے اوپر. جی تو وہ بھی جہاں تک مجھے پتا ہے اور خبریں بھی یہی آئی تھی کہ وہ نتیجہ تھی ایک بیک چینل ڈسکشن کے لحاظ سے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کے میکنزمز جو ہیں وہ آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں، ان کے درمیان اس قسم کے میکنزمز ہوں. لیکن جہاں تک یہ مسائل کا تعلق ہے، اور یہ سپرسونک مسائل ہے، براموس اس کے نام ہے، تو اس کی رینج ہے کوئی 340 سے لے کے 400 کلومیٹر تک، اور ہمارے اس میں انسائڈ ٹیریٹری گری، جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا، اس میں 4-5 کمرشل فلائٹس بھی اس وقت آپریشن تھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی. تو یہ حادثہ تو ایک بڑا سنگین اس کا نتائج ہو سکتے تھے. اور میرے خیال میں جہاں تک ہم نے اپروچ کیا ہے یو این کو اور لوگوں کو کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے حوالے سے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کو بھی ہمیں اپروچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ جو سول ایویشن ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، جو سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کو بھی انشور کریں. جی سو ہاسنی، آپ نے بات سنی جنرل صاحب کی، شاہد ملک صاحب کی بھی. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو آفیشیل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی مشترکہ تحقیقات یعنی جوائنٹ پروب ہونا چاہیے. از انڈیا لائکلی ٹو ایکسپٹ دیٹ؟ I don't think so at all. I think جو آپ نے سنا تھا انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ ایک تحقیقات آلریڈی ہو رہی ہے، ایک کمشن آف انکوائری بٹھائی گئی ہے، اور ہائیسٹ لیول پہ یہ بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ دو رائے ہیں یہاں بھارت میں کہ یہ ایک بہت سیریس انسیڈنٹ ہے، اور اس میں ایسکلیشن کا بھی بہت ڈینجر تھا، لیکن یہ ایورٹ ہوا ہے. اور حالانکہ کوئی اس میں کیجولٹیز، انجریز تھینک گاڈ نہیں ہوئے ہیں. انڈین گورنمنٹ نے اپنے طرف سے اس پہ کافی ہائی لیول انکوائری بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جوائنٹ پروب اس وقت کا ایسا کوئی آئیڈیا ہے. اچھا، جوائنٹ پروب آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان شاید ایکسیپٹ نہ کرے. امجد صاحب، جوائنٹ پروب کی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایز سچ کوئی چانس نہیں ہے، تو کیا پھر پاکستان کو جو انہوں نے انٹرنل پروب ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دو ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک لیک آف ٹرسٹ ہے آپس میں، اور یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی ایلیمنٹس نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کوئی ٹیکنیکل یا پروسیجرل مسٹیک ہوئی، یہ اس کا کوئی آپ کیسے پتا کریں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کیا کریں، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ایشو ہے جس پہ کہ پاکستان کیونکہ افیکٹڈ پارٹی ہے، سیٹسفیکشن اس کی کروانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر میں کچھ بھی انکوائری کر لیں، کہ پاکستان از ناٹ سیٹسفائڈ دین نیچرلی in the entire process wherever it is, it will not be of any use to the ٹھیک. بہت شکریہ امجد شعیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہد ملک صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے، سہاسنی کی بھی آپ نے بات سنی. امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ ول بی آف نو یوز اف دس از جسٹ این انٹرنل پروب، بٹ آئی تھنک دیٹس آل دیٹ وی آر گیٹنگ. ہمیں صرف یہی ملے گا. تو اب آگے اگر بڑھنا ہے اور بات چیت کی کہا جا رہا ہے کہ جی براہ راست بات چیت ہونی چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تیار ہے بات چیت کے لیے، ڈائریکٹ ٹاکس حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے، بات چیت کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات چیت میں ہندوستان کس حد تک آگے بات چیت کرنے کو تیار ہے. ہم نے تو مختلف سطح پہ بات چیت کرنے کی آفر کی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ان مسائل کے اوپر ہو، ان ایشوز کے اوپر ہو جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات آج کل جس حالت میں ہیں اس میں ہیں. So there is no substitute for talks. You see, even if we sit across and agree to disagree,
वो भी उससे बेहतर है कि आप बात नहीं कर रहे आपस में। तो ये जरूरी है कि पहले बातचीत आपस में होनी चाहिए और बातचीत के लिए फिर एक एजेंडा सेट करना चाहिए। उसमें चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए कि हम ये बात करेंगे वो बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे ये बात नहीं करेंगे, जो कि हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से होता रहा है। बातचीत हो तो जामे बातचीत हो, हर इश्यूज के ऊपर बात हो। और बाकी जहां तक है कि ये हमें बिल्कुल ये जॉइंट प्रोब जो है, मैं समझता हूं कि जॉइंट प्रोब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिसाइल जो है ये हमारे खित्ते में आके गिरा है। आफ्टर ऑल वी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन द होल थिंग, क्योंकि हम तो इससे डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। तो जॉइंट प्रोब तो बिल्कुल होना चाहिए। इन्वॉल्व का मतलब है कि हमारे खित्ते में आके गिरा है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी डिमांड जो है ये बिल्कुल बजा है जॉइंट प्रोब के लिए। सुहासनी, आप क्योंकि बातचीत करती रहती हैं हुकूमत के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे भी, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त मोदी सरकार इस मूड में है कि वो पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात जो है फिर से शुरू करे और बातचीत बराह रास्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो? देखिए, इसमें काफी चीजें हैं। एक तो है क्या अभी टॉक्स की कोई गुंजाइश है? तो मैं कहूंगी आई एम सरप्राइज कि शायद साहब कह रहे हैं कि ये चेरी पिकिंग इंडिया की तरफ से हुआ है, क्योंकि आपके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी क्लियरली कहा है कि इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है जब तक आर्टिकल 370 और 2019 के जो मूव्स इंडिया ने किए हैं जम्मू कश्मीर पे, उन पे कोई रिवर्सल ना। तो जहां तक बातचीत का पहल है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी कि कुछ हफ्ते पहले एक पहल आई थी, पाकिस्तान हाई कमीशन ने फॉरवर्ड किया था एक रिक्वेस्ट की रिलीजियस पिलग्रिमेजेस को अब बाय एयर अलाउ किया जाए। और इस पे MEA का रिस्पांस था कि बेशक हम करना चाहते हैं, लेकिन इसकी डिस्कशन रिलीजियस प्रोटोकॉल पे होगी, 1974 जो प्रोटोकॉल है, और वो अभी हो नहीं सकती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किसी और इशू पे वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। दिस इज द मैसेज आई गेट। लेकिन जहां तक बैक चैनल की बात है, हालांकि काफी डिनायल्स आ चुके हैं सर्टनली पाकिस्तान की तरफ से। आपके NSA ने भी काफी क्लियर डिनायल दिया था। हमने एक्चुअली कॉन्फर्मेशंस काफी देखे हैं। UAE के एक एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि हम मीडिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। लंदन से खबरें आती हैं कि बैक चैनल बरकरार है। और जैसे शायद साहब कह रहे थे, पिछले साल जब वो DGMO की एग्रीमेंट आई थी, आप एग्रीमेंट की लैंग्वेज को देख लीजिए, ये मिलिट्री की लैंग्वेज नहीं है जहां वो इश्यूज की बात कर रहे हैं, बायलैटरल इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहां तक मैं कहूंगी कि ये जो मिसाइल का मामला है, आप समझती हैं आज के दौर में जहां इतने टेंशन्स हाई हैं, यूक्रेन का मामला भी चल रहा है तो टेंशन्स और भी बढ़ रहे हैं, इस तरह के माहौल में 24 घंटे निकल जाते हैं एक मिसाइल के गिरने के बाद, और फिर आपकी तरफ से मिलिट्री का एक बहुत, मतलब आई एग्री, यहाँ पर भी इंडिया में काफी मतलब इन्होंने लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि मिलिट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत स्टेट लैंग्वेज में, बहुत मैच्योर लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि ये हुआ है, हम चाहते हैं कि इंडिया इसकी तहकीकात करे, जांच करे। बड़े एहतियात से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि इस तरह के मतलब दोनों तरफ से रिस्ट्रेन पॉसिबल नहीं है अगर दोनों के बीच में कोई इमीडिएट कॉन्टैक्ट ना हुआ हो, जहां पे इंडिया की तरफ से बताया गया या पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि ऐसी तरह की चीज हुई है और इंडिया की तरफ से कहा कि हम तो सुहासनी, अभी क्लोज टू लेट से, क्या हम बातचीत फिर से करने के करीब भी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक जरूर, एंड आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग इट, लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह के शब्द अल्फाज यूज किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं, ना कि एक पर्सनालिटी के लिए, अभी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी तरह की बातचीत की पहल हो रही है। लेकिन जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों तरफ में कुछ तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, कुछ तरह की बातचीत होनी चाहिए, शायद ये बैक चैनल पे है। काफी ऐसे अखबार रिपोर्ट्स हैं, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिपोर्ट किए हैं कि किसी तरह की पहल हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है सुहासनी। आपको याद होगा कि
कि हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी और उसके अंदर भी हमें बताया गया था कि आपके एनएसए एडवाइजर और यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनकी बातचीत हो रही है। शाहिद साहब को भी बहुत सारी चीजों का मालूम है, उनसे ही पूछ लेते हैं। शाहिद साहब, बैक चैनल ताल्लुकात जो हैं डिप्लोमेट्स भी कर रहे हैं, बैक चैनल ताल्लुकात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट्स भी कर रही हैं दोनों मुल्कों की, मगर मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कोई आप समझते हैं कि कोई आगे बढ़ी भी है बात कि सिर्फ बातचीत पे ही मामलात हैं और कश्मीर और टेररिज्म के ऊपर भी मसला अटका हुआ है अभी? देखिए, जिस तरह सुहासिनी ने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, वो भी यही चाहती हैं, लेकिन बातचीत के लिए साजगार माहौल होना चाहिए, जिसको कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। राइट। जब साजगार माहौल होगा तो पाकिस्तान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। हम कभी नहीं हिचकिचाते कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि माहौल बनना चाहिए। माहौल बनना, एंड इट टेक्स टू टू टैंगो। हिंदुस्तान के कोर्ट में बॉल है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कंफर्ट लेवल मिले कि हिंदुस्तान अब सीरियस तरीके से हमसे बात करने के लिए तैयार है, तो हमें बातचीत करने में नहीं, मगर शायद साहब देखिए एक स्टेटमेंट ये भी आई थी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आई थी कि जी हम ट्रेड चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ तजारत चाहते हैं, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट वैसे तो नहीं दी, कुछ बैक चैनल टॉक्स पे इसके ऊपर बात आगे बढ़ी तो ये स्टेटमेंट आई। देखिए, जहां तक ट्रेड का सवाल है, उनकी भी स्टेटमेंट आई। हमारे जो कॉमर्स के एडवाइजर हैं रजाक दाऊद साहब, उनकी भी रीसेंट स्टेटमेंट आई कि इट इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन एक चीज मैं आपको मुनीज़ बताता चलूं कि मेरा तजुर्बा ये रहा है हमेशा कि जब तक पॉलिटिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, ट्रेड रिलेशन सस्टेनेबल नहीं हो सकते। और इसकी मैं मिसाल हमेशा से देता हूं कि सन 65 की जंग से पहले जो लेवल ऑफ ट्रेड था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद जो फिर बीच में जो डिसरप्शंस होती रही, जंगें हुई हैं, उसके बाद हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप जब आगे बढ़ेंगे, मैं साथ साथ ये भी कहता चलूं कि ट्रेड की जरूरत है। ट्रेड बड़ी अच्छी चीज है, आपस के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, मैं सुहासिनी से सवाल करूंगा, इन्होंने भी, इनका बड़ा तजुर्बा है, मुझे बताइए कि कनेक्टिविटी के लिए क्या वजह है कि सबसे पहले पहल करके आप लोग ये नहीं कहते हिंदुस्तान की हुकूमत कि हम सार्क समिट में आने के लिए तैयार हैं? ये सवाल उनसे कर लेते हैं। लेट्स ब्रेक द आइस। ये सवाल जी सुहासिनी। अच्छा, ठीक है। देखिए, आई थिंक जो सार्क का मामला है, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी बार इस पे इन्होंने बयान दिए हुए हैं कि एज शाहिद साहब सेड कि माहौल बनना चाहिए, फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और उनको नहीं दिखा है कि अभी तक वो माहौल बना है। इसके अलावा मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से शायद पब्लिक स्टेटमेंट्स आए थे कि एक वर्चुअल समिट भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन किसी तरह का फॉर्मल रिक्वेस्ट अभी तक सेक्रेटेरिएट से नहीं आया है इंडिया के पास। हालांकि हमें पता है कि पिछले 2 साल पहले 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वर्चुअल समिट सार्क के अम्ब्रेला के अंदर किया था हेल्थ पे, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे कुछ पहल हो सके। इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ गिव एंड टेक, और जहां पे लोग नहीं, मगर इसके ऊपर माहौल की भी एक सवाल उठता है सुहासिनी। अब आपने एक बात कही थी, शायद मलिक साहब, हमारी ऑपोजिशन भी इसके ऊपर बात करती रहती है, जो वजीर आजम ने जिस लफ्जों से नरेंद्र मोदी साहब को याद किया है, आप समझते हैं कि उससे सही माहौल बना है बातचीत के लिए? आप मुझसे पूछ रही हैं मनीष? जी जी, आपसे। जी देखिए, ये चीजें ऐसी होती रहती हैं, कुछ बैकग्राउंड होता है जिस बैकग्राउंड में कोई बात की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्बत किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी सुहासिनी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। वाई शुड वी लुक एट द अदर साइड? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं हर लेवल पे, अभी जैसे मुनीज़े ने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, वजीर खारजा की तरफ से हमेशा हमने ऑफर की है बातचीत करने की। ट्रेड की बात हुई, मैं ये कहता चलूं कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रेड पोटेंशियल है, दैट इज क्लोज टू $40 to $50 billion जो फॉर्मल ट्रेड का है। yes. तो इसके लिए वाई शुडंट वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और उसके एडवांटेज हासिल करने के लिए
ضروری ہے کہ آپس میں بات چیت کی جائے, ہر چیز کے اوپر بات چیت کی جائے, اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں. جی سہاسنی, جسٹ لاسٹ ورڈ فرام یو, یہ بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر جو مودی حکومت ہے اگر الیکشنز کے قریب جائے گی تو تب شاید نرم ہوئے پاکستان کی طرف سے اور تب بات چیت کرنے کے لیے راہ ہموار کرے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں پاکستان سے بات ہی نہیں کرنی؟ دیکھیے, انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اتنے سائیکلز ہوتے ہیں کہ الیکشنز آلویز وہاں بیچ میں پڑ جاتے ہیں, لیکن مجھے ضرور لگتا ہے کہ جب ماحول ٹھیک ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون سی حکومت کہاں پر ہے اور یا کب الیکشنز ہونے والے ہیں. اگر دونوں طرف سے لگے گا کہ کچھ فائدہ ہے, یہ بات چیت کہیں جا سکتی ہے, پھر مجھے لگتا ہے کہ اس بات چیت کو فرنٹ برنر پہ لایا جائے گا. ابھی کے ماحول میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ دونوں طرف سے اتنا مطلب ارجنسی ہے. رائٹ, آپ ٹرین پہ کہہ دیجئے, آپ ٹرانزٹ پہ کر دیجئے, جہاں پہ پاکستان نے الاؤ کر دیا انڈین ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کے لیے, چھوٹی چھوٹی مطلب ایسے میجرز ہم دیکھ رہے ہیں. کرکٹ کا ایک میچ پچھلے سال ہو گیا تھا, اور بھی اسپورٹنگ انگیجمنٹس کے لیے دونوں طرف سے کھلاڑی ایک دوسرے کے کنٹریز میں گئے ہیں پچھلے سال. تو اس طرح کے کافی انگیجمنٹس ہم نے دیکھے ہیں, لیکن کوئی ٹھوس کوئی مطلب پختہ طرح کی اگر سبسٹینشیل ٹاکس کی آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ماحول ہے, ابھی جو ایپیٹائٹ ہے, وہ اس طرح کی بیک چینل انگیجمنٹ کے لیے ہے. پہلے ماحول کو اسٹیبلائز کیا جائے, اس طرح کے ایسکلیشن کو پریونٹ کیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت سکسیسفل پریونشن آف کانفلکٹ ایسکلیشن ہم نے دیکھا ہے ابھی, اور تھوڑا تھوڑا بڑھتے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرنٹ برنر پہ کیا دونوں طرف لانا چاہتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ سہاسنی حیدر صاحبہ, آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا, شاہد ملک صاحب اور امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, دلی سے کم از کم سہاسنی حیدر صاحبہ کا یہ ویو ہے کہ اس وقت ماحول سازگار نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے باہمی تعلقات اور براہ راست بات چیت ہو سکے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.